Good morning, student of class 9th. In economics, we were doing the basic concepts of economy. Okay. So some topics are left. Now, yesterday I explained to you the factors of production, right? What are the factors of production? Factors of production means the things which are helpful in production process. जो production process में help करते हैं, that is known as production factors of production. I have given you the there are two classification of factors of production, that is factor inputs and non-factor inputs, right? Factor inputs which are permanent in nature and non-factor inputs which are perishable in nature. So these are some factors of production which comes under your factor inputs which is permanent in nature. ये कुछ ऐसे factors of production है which is used in production process every time. ये चीज़ें, ये 4 factors of production हर वक्त किसी भी तरह का production हमें करना हो, these factors of production are helpful, right? Land, one is land, labor, capital and organization. These are the 4 factors of production. Land. Now let's understand that what is land. Land means, here land does not mean that a piece of land. Okay, यहाँ पे land का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है. इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब है ऑल द नेचुरल थिंग्स. ओके, बेसिकली इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज गिवन बाय द नेचर, helps to carry out the production of goods and services, which is helpful in production process. For example, your air, sunlight, wind, soil, all these things will be considered under this land. ये सब land कहे जाएंगे. Okay, so basically all the free gift of nature will come under your land. Okay, next is your labor. Labor, it is an active factor of production. Active factor of production मतलब कि इनके बिना पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन. सारे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, दे आर डिपेंड अपॉन द लेबर. ये लेबर पे डिपेंड है. अगर लेबर ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कौन करेगा, राइट? सो लेबर, ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क, फिजिकल और मेंटल, डन विद अ व्यू टू अर्न इनकम. बेसिकली जो भी ह्यूमन वर्क या ह्यूमन एफर्ट लगाया जाता है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, दैट विल कंसिडर्ड एज लेबर. All the person in the economy will be considered in economics. They will be considered as labor. वो कैसे consider, वो क्या consider किए जाएंगे? Labor, right? So this is labor. Okay, it can be your person who is providing services, who is doing the physical work, they will also be considered as labor. And the person who is doing the mental work, it can be intellectual work, the software engineers, then your IAS, so all they will be considered as labor in economics, right? Next is your capital. Now what is capital? I explained you, I think, that capital is the part of wealth which can be used for further production. Means the thing which is used for further production. जो भी चीज़ें further production के लिए use होती हैं, that will be considered as capital. For example, if we are using machine for production, अगर हम machine का use कर रहे हैं production के लिए, so that machine will be considered as capital for us. For producer also, because वो उस मशीन का यूज किस लिए कर रहा है? बेसिकली प्रोडक्शन के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल. जो भी चीजें फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल. ओके, मशीन्स हो गया, देन योर बिल्डिंग्स हो गई, then if you are using any vehicle, then that vehicle will be considered as for business purpose, then also it will be considered as capital. मैंने ऑलरेडी तुम लोग को एक पीपीटी में कैपिटल के एक्सप्लेनेशन दिया था. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, ओके, बोथ आर करेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन भी सही है और एंटरप्रेन्योर भी सही है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इट रेफर्स टू द सर्विस और द पर्सन. एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं. इट रेफर्स टू सर्विस, ये एक सर्विस है या एक पर्सन को कहेंगे हु कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मान लो अगर लेबर प्रोड्यूसर के पास या बिजनेसमैन के पास लेबर भी है, कैपिटल भी है, राइट, लैंड भी है, और बट उसको ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं है, देन व्हाट विल हैपन?
कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी प्रॉपर वे में, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन योर क्लास, इफ all the students are there, books are also available, board is also there, everything is there, but teacher is not there. So we will say that yes, class is managed? No, right. कोई होना चाहिए जो उस चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को या चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे, उन सबको कंट्रोल करे, ऑर्गेनाइज करे. दैट विल, सो या तो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हु टेक्स रिस्क, वो रिस्क लेता है, एंड हु ऑर्गेनाइजेज द other factors of production. Clear? Okay, so this is entrepreneur. Okay, so these are the factors of production. I hope this is clear to you. Factors of production which is helpful in production process. जो भी चीज़ें हमारे production में हमें help करती हैं, they are considered as factors of production. So there are the factors of production are classified into two groups, that is factor inputs और non-factor inputs. Factor inputs जो permanent होते हैं, जो हमेशा यूज़ किए जाते हैं, and non-factor inputs जो perishable है, जो बहुत जल्दी destroy हो जाएंगे, जैसे raw material, fuel खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, right? So basically factors of production में ये चीज़ें आती हैं, that is your land, labor, capital and organization. Clear? Next is your consumption, right? कंजम्पशन क्या होता है? सो कंजम्पशन मीन्स व्हेन वी कंज्यूम समथिंग, व्हेन वी यूज़. ओके, जब हम कोई चीज़ को, जैसे मैं ये पेन है, इस पेन का यूज़ कर रही हूँ, राइट, एंड आई गेट द सेटिस्फैक्शन, मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ, सो आई एम कंज्यूमिंग दिस, राइट. फिर उसके बाद हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट से हमने कोई टॉफ़ी ली, चॉकलेट लिया, ओके, एंड आफ्टर ब्रिंगिंग देम, after purchasing them, we are eating that chocolate, so we are consuming, use कर रहे हैं, so that is consumption, right? So consumption means destruction और lessening. जब कोई चीज़ खत्म हो रही है, कम हो रही है, कोई प्रोडक्ट या गुड्स, सर्विसेज और गुड्स to satisfy human wants, that is considered as consumption, right? जब कोई चीज़ कम हो रही है, कंज्यूम हो रही है, लेस हो रही है अमाउंट में, दैट इज कंजम्पशन. अब ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ लाया और वैसे ही रखी हुई है, सो दैट विल नॉट कंसीडर्ड एज कंजम्पशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिए, राइट, और वो प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में लाते लाते वो डिस्ट्रॉय हो गया या कहीं कुछ डैमेज हो गया, सो क्या हम ये कहेंगे कि दैट प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड? नो, दैट इज नॉट कंज्यूम्ड. वो कंज्यूम नहीं हुआ है. ओके, कंज्यूम यानी जब कंज्यूमर खुद यूज करे, उसे सेटिस्फैक्शन उसको मिले, सो दैट इज कंजम्पशन, राइट. नाउ हियर वन सेंटेंस इज गिवन इन योर बुक दैट कंजम्पशन इज द बिगनिंग. इट्स अ बिगनिंग एज वेल एज एंड. इट्स अ बिगनिंग, ये बिगनिंग भी है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें कैसे, हाउ वी विल कम टू नो दैट यस दिस प्रोडक्ट इज गुड और नॉट. ओके, सो इट्स अ बिगनिंग, एक स्टार्टिंग भी है, एंड कैसे, व्हेन वी गेट द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई दैट इज एंड, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कंजम्पशन इज बिगनिंग एज वेल एज एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. हमने यूज किया तभी हमें पता चला yes this product is good, and when we get the satisfaction from that particular food, that is considered as end. Clear? Next, there are different types of consumption given in your book. That is your final consumption, productive consumption, quick consumption, slow consumption, wasteful consumption. Final consumption means when a commodity is consumed directly for satisfaction of human want, जो हम directly use कर रहे हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, दैट इज फाइनल कंजम्पशन, तुरंत यूज किया. फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स, पिज्जा, आइसक्रीम, सो वी आर डायरेक्टली यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्टिव व्हेन कमोडिटी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी. प्रोडक्टिव नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्टिव. सो व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट इज कंजम्पशन. ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूसर कंज्यूम करेगा, उसको यूज करेगा, राइट. सो वो क्या होगी, प्रोडक्टिव कंजम्पशन होगी अगर उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज योर प्रोडक्टिव कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन लाया, उससे शुगर बनाया, सो दैट कम्स अंडर योर प्रोडक्टिव कंजम्पशन. जो प्रोडक्शन प्रोसेस के या प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए जो कंज्यूम किया जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्टिव कंजम्पशन. नेक्स्ट इज
क्विक कंजम्पशन, क्विक मीन्स इंस्टेंट, तुरंत, राइट, जिसको व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज फिनिश्ड और डिस्ट्रॉयड द मोमेंट इन इज कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड क्विक कंजम्पशन, राइट। जैसे हम कोई चीज़ है, कोई यूज़ करते हैं, उससे तुरंत हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज क्विक कंजम्पशन। जैसे सिंगल यूज चीज़ें जो सिर्फ एक बार यूज़ होती हैं, ओके, जैसे हमने मिल्क हमने पिया, तुरंत हमें कंज्यूम हो गया एंड वी गेट द सेटिस्फेक्शन एंड गुड फॉर हेल्थ, तो यूटिलिटी उसकी ज़्यादा थी, सो दैट इज क्विक कंजम्पशन। नेक्स्ट इज स्लो कंजम्पशन। कुछ चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे यूज़ होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉच हो गया, ओके, वॉशिंग मशीन हो गया, ये स्लोली, ऐसा तो नहीं है तुरंत कंज्यूम किया तुरंत सेटिस्फाई, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे होता है, सो दैट इज स्लो कंजम्पशन। एंड लास्ट इज वेस्टफुल कंजम्पशन। जो वेस्टफुल है, जो व्हेन कमोडिटी लूजेज इट्स यूटिलिटी विदाउट सेटिस्फाइंग एनी वांट, जो बिना सेटिस्फाई किए हुए उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ न्यूली स्टिच्ड क्लोथ्स फायर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में दिया है कि अगर कोई नए सिले हुए कपड़े उनको आग लग जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, दैट इज वेस्टफुल, वो यूज नहीं हुए लेकिन वेस्टफुल, राइट। सो दिस इज ऑल योर कंजम्पशन, क्लियर। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन मीन्स basically it emphasizes the consumption of goods and services wisely such that waste products and pollution are minimized. Basically economics says that in minimum if we can do something maximum, that is economics, right? So basically what is happening here, if we this sustainable consumption means we need to use our resources economically, clear? So that is sustainable consumption. For example, if we have to go somewhere else, so हम public transport का use करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का जो रिन्यू किए जा सकते हैं उनका, उन एनर्जीज का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स व्हेन वी यूज समथिंग, दैट इज कंजम्पशन, और डिस्ट्रक्शन एंड लेसनिंग ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ओके। Now the last topic is saving and economy. Now what is saving? It is the excess of income over net consumption. जब किसी की इनकम, अपनी इनकम में से जो कंज्यूम करता है पार्ट, वो कंज्यूम करने के बाद जो उसके पास बचती है, दैट इज कंसिडर्ड एज सेविंग, उसको सेविंग कहा जाता है, राइट। सो इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम का ज़्यादा होना ओवर नेट कंजम्पशन, ओके। आपने कंजम्पशन मान लीजिए थोड़ा किया और इनकम अपनी थोड़ी बचा ली, दैट इज कंजम्पशन, ओके। सेविंग इसका फॉर्मूला है S = Y - C, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 50,000, राइट, मैंने सिर्फ यूज़ किया 20,000, सो मेरी जो 30,000 है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, ओके। सो S is saving, Y refers to income and C refers to consumption, okay. सो जब कोई अपनी इनकम में से कंज्यूम करने के बाद जो पार्ट उसके पास इनकम का बच गया, दैट इज सेविंग, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। A.G. Brown says that economy is a system by which people get living and satisfy their wants. Means A.J. Brown ने कहा था it is a system, ये एक सिस्टम है, right? It's a system by which people get a living. people लोग क्या करते हैं, अपनी लिविंग को अर्न करते हैं to satisfy their wants, अपनी wants को satisfy करने के लिए। So economy is a system, एक system है in which people earn, they consume to satisfy their wants, because economy says the ultimate aim of economy is to satisfy human wants. Human wants को satisfy करना ही economics का ultimate goal और aim होता है, right? So this is all saving and economy. Now this chapter is over, okay. I hope these are clear to you, okay. In the next video we will start the new chapter. Thank you so much.